Hello students, hope you all are doing good. So welcome to the semester 5th computer and myself Professor Dipali Jain. So I am taking your subject as analysis and design of algorithm, that is ADA, and the subject code of the subject is 3150703 as per the GTU. So today I will start the unit 1 in your lecture 1 of ADA. The name of the unit 1 is Basics of Algorithms and Mathematics, and this unit having the weightage of 2% basically in GTU. So let's see the today's lecture outline. Unit 1, Basics of Algorithms and Mathematics. So lectures, in this lecture I will cover the following topics. So let's see the today's topics outline. Today I will cover the 3 topics in this lecture 1. The topic 1 is algorithm definition and properties of algorithm. So basically there are 5 properties of algorithm you will see: input, output, finiteness and definiteness and effectiveness. Okay, so I will explain all these 5 properties right after the explanation of definition of algorithm. Then you will see in topic 2 as designing of an algorithm. So there are 6 steps of designing of an algorithm. So you will see in this topic the diagram with the explanation, right? So I will explain the diagram and the explanation of all these steps orally to explain you, right? Then you will see the topic 3 as the mathematics of for algorithmic sets, right? तो इसमें you will study the set theory, right? So मैथ्स में आपने set theory पढ़ी होगी तो उसी से related है, और ये generally जो है थोड़ा सा co-related बताया है कि mathematics के साथ में क्या ADA का topic जो है वो add होकर के आया था. So in this you will see 3 methods of the representation of the sets as listing methods, describing properties, and the third one is recursion method. Okay, so this is the total outline of your today's lecture 1 of your subject ADA. So let's see the syllabus present in GTU as unit 1 as having the weightage of 2%, right? So 2%, so basically the short question will ask from this unit. So we'll cover up this unit very quickly as it is having the less weightage as compared to the other units, and like your unit 4 and 5 having the 20% weightage. So we will focus more on that units, like they are totally mathematical, right? So this is the unit 1 topics, what is an algorithm. So I will cover today mathematics for algorithmic sets. So you will see the theory of sets today, and later I will explain the functions, relations, vectors and matrices, linear inequalities and linear equations, right? So let's see the today's lecture. Topic 1, algorithm and properties of an algorithm. So आप already study कर चुके हो कि algorithm क्या है, और first of all I need to say you कि आपको पूरे सेमेस्टर में यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन बनाए हैं, तो आपको टोटली हैंड रिटन नोट्स जो है वो अच्छे से यहाँ पर मिलेंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि मैंने तो यहाँ पर अपने हाथों से एक बार नोट्स को लिख लिया है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू कि आप भी अपने हाथों से एक बार नोट्स को लिख करके प्रिपेयर करो मटेरियल को बहुत अच्छे से फॉर द GTU. एक बार आप राइट डाउन करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली, नीटली, राइट? सो लेट्स सी unit 1 and topic 1, algorithm and properties of an algorithm. टॉपिक 1 आई राइट हियर, एंड GTU एग्ज़ाम में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने जो आपका ये मटेरियल यहाँ पर प्रिपेयर किया है वो कैसा है कि आप टॉपिक 1 है उसका नाम लिखा है, फिर उस टॉपिक के अंदर GTU में से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली आपको क्या किसके ऊपर फोकस करना है, तो पहले मैं वो यहाँ पर मेंशन करती हूँ, और कितने मार्क्स का पूछा है वो भी यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ताकि आपको उससे टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, राइट? सो GTU में जो क्वेश्चन है वो क्या आया हुआ है ऑलरेडी 3 मार्क्स के अंदर, और मैंने आपको बोला इसका वेटेज 2% है, राइट? तो इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा. व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिथम. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, GTU में आया हुआ है, तो वो आपको जो आपका फॉर्मेट है GTU का 3, 4, 7, तो उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है. सो लेट्स सी द आंसर. व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? सो डेफिनेशन, एन एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ computational steps, or we can say an algorithm is a step by step procedure, right,
to solve a particular problem. So you can write also that definition here, and also you can write an algorithm is a sequence of computational steps that transform the input into the output. So algorithm क्या होती है, ऐसी sequence होती है computational steps की जो transform करती है input से लेकर के output तक हमको, राइट और आपने ऑलरेडी मुझसे एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन और लर्न की है. एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट डेफिनेशन ऑल्सो हियर. जो आपको बेटर लगता है वो डेफिनेशन एग्जाम के अंदर राइट कर सकते हो. सो देर आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम. प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम जो कि इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है. तो 5 प्रॉपर्टीज होती है एल्गोरिथम की, 5 नेम्ड एज इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस एंड नेक्स्ट वन आएगी आपकी इफेक्टिवनेस. सो लेट्स सी द इनपुट. एन एल्गोरिथम हैज सम इनपुट्स दैट आर सप्लाइड टू द एल्गोरिथम. तो हर एल्गोरिथम के पास में क्या होते हैं, सम इनपुट्स होते हैं. जब आप एल्गोरिथम की स्टेप्स लिखते हो, स्टार्ट लिखते हो स्टेप 1 में, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिखते हो वहाँ पर आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो. जो अपना वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनपुट्स बोलते हैं. तो एन एल्गोरिथम हैज सम इनपुट्स दैट आर सप्लाइड टू द एल्गोरिथम. जो एल्गोरिथम को क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं. Second property is output. An algorithm has at least one output as a result. तो हर एल्गोरिथम को जब आप सॉल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो इनपुट से जब आउटपुट तक जाते हो तो आपके पास में एटलीस्ट एक आउटपुट तो उसे जनरेट होना ही चाहिए. These outputs और results depends upon the inputs. जो आप इनपुट दोगे उसके ऊपर ये आउटपुट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट्स, और इनपुट की प्रोसेसिंग के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं. थर्ड वन इज द फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, राइट. तो अभी आपने बोला कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, लेकिन फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स होती है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइटनेस, जिसको आप काउंट कर सकते हो. तो हर एल्गोरिथम में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप स्टेप्स को काउंट कर सकते हो. सो लेट्स सी फाइनाइटनेस. इट मीन्स दैट एन एल्गोरिथम मस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स. हर एल्गोरिथम की क्या होनी चाहिए, फाइनाइट मतलब काउंटेबल. इनफाइनाइट स्टेप्स ना होकर के काउंटेबल होनी चाहिए. तो कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स. सो दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज फाइनाइटनेस, जिसको आप काउंट कर सकते हो. आफ्टर दिस स्टेप्स द एल्गोरिथम विल बी टर्मिनेटेड. तो इन स्टेप्स के बाद में आपकी एल्गोरिथम क्या हो जाती है, टर्मिनेट. यानी कि आप स्टेप 1 में जैसे स्टार्ट लिखते हो तो लास्ट स्टेप आपकी क्या बनती है, स्टॉप. तो इसके बीच में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होती है दैट शुड बी काउंटेबल, फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफाइनाइटनेस. ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी कॉन्साइज. हर स्टेप जो होती है वो कॉन्साइज मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में थियोरी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो. मीन्स आप अपना जो बेसिक पर्पस है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एल्गोरिथम का, उसको कॉन्साइज वे में शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड के अंदर. क्लियर होनी चाहिए, राइट. कि मीन्स आप जो स्टेप लिख रहे हो दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन. कि कोई अगर नॉन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर्सन है तो उसको भी वो स्टेप्स जो हो वो अच्छे से क्लियर हो. एंड अनएम्बिगियस मीन्स उसको कोई कन्फ्यूजन की स्टेट्स जो है वो क्रिएट ना करे. सो एल्गोरिथम शुड बी ए डिफाइनाइटनेस मीन्स ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी कॉन्साइज, क्लियर और अनएम्बिगियस, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज effectiveness. The fifth property of the algorithm is effectiveness. Every instruction must be sufficiently basics and feasible. जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, क्योंकि एल्गोरिथम क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कंप्यूटर की लैंग्वेज को, राइट. जो आप प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले फ्लो चार्ट आए थे, फिर एल्गोरिथम्स आई थी, फिर एल्गोरिथम्स के बाद में प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट हुआ था, राइट. तो उस टाइम पे जो नॉन कंप्यूटर पर्सन है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो एल्गोरिथम से उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझते थे, राइट. तो आप जो भी लिखते हो वो सफिशिएंटली बेसिक होना चाहिए और फिजिबल मीन्स उसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये इससे रिलेटेड ही है. ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी इन ए सीक्वेंस. तो फिजिबल भी होनी चाहिए और प्लस सारी स्टेप्स आपकी शुड बी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए. सो हियर द टॉपिक 1 इज कंप्लीटेड, एल्गोरिथम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम. तो मैं आपको फिर से इसको गो थ्रू करवाती हूँ. नेक्स्ट आई विल स्टार्ट टॉपिक 2, डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम. तो आपका जो टॉपिक 1 है एल्गोरिथम एंड प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम की डेफिनेशन को राइट डाउन करना है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
डेफिनेशन को. आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द 5 प्रॉपर्टीज़. तो पांचों प्रॉपर्टीज़ का आप चार्ट भी बना सकते हो. चार्ट बनाने के बाद नेम मेंशन करने के बाद यू नीड टू राइट द प्रॉपर्टीज इन 2 लाइन. तो आपको 2 लाइन्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एज ये क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स के अंदर GTO के अंदर मिलेगा. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस एंड द लास्ट वन इज द इफेक्टिवनेस. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द टॉपिक 1 of unit 1 is completed. Let's we move to the topic 2, designing of an algorithm. कि अगर हम किसी इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आप क्या स्टडी करोगे कि आप किसी एल्गोरिथम को अगर डिज़ाइन करते हो तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स जो होती है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है. सो टॉपिक 2, तो GTO में इसका क्वेश्चन जो है वो पहले जो आया हुआ है May 12 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो इसके मार्क्स जनरली 3 होंगे, 3, 4, 7. तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर आया हो तो माइट भी प्रेजेंट होगा. सो इसके अंदर हम बेसिकली क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन द स्टेप्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू द नेम. सो लेट्स सी द स्टेप्स. क्या क्या है एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए स्टेप? तो स्टेप 1 है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ये आपको पूरा जो डायग्राम है अच्छे से इस तरीके से बना करके आना है और उसके 1 लाइन की थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करना है. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहले आपका जो क्वेश्चन आता है एल्गोरिथम के अंदर आप उस प्रॉब्लम को समझो. डिसीजन मेकिंग ऑन, तो आप जो डिसीजन लोगे वो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको लेना होगा उस एल्गोरिथम के लिए. तो फर्स्ट वन इज कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइसेस. कि आपकी जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है जिसके अंदर आप इसको परफॉर्म करोगे, राइट, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, कि कितनी हार्ड डिस्क है, क्या रैम है उसकी, कितना रैम है उसका, कितना हार्ड डिस्क है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है. सेकंड, सेलेक्ट द एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मेथड. तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए डिवाइस परफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद तो सेकंड नंबर पे आपको क्या डिसीजन लेना है? एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मेथड जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको दे सके. तो उसको आप सेलेक्ट करोगे जो आपके नंबर ऑफ सेलेक्टिंग मेथड्स है उसमें से. थर्ड वन इज डेटा स्ट्रक्चर्स, कि आपको कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स की इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी. जब आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे तो वहाँ पे डेटा भी कौन कौन सा आएगा, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है. तो किस तरह के डेटास को आप यूज़ करने वाले हो, टाइप ऑफ डेटास, तो यहाँ पर वो सब डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे. नेक्स्ट वन इज एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजीज, कि आप एल्गोरिथम की जो स्ट्रेटेजीज है उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे. तो पहले प्रॉब्लम को समझोगे स्टेप 1 के अंदर. स्टेप 2 में जो आप डिसीजन लोगे वो ये सारे डिसीजंस जो है इसके बेसिस के ऊपर लोगे. द थर्ड स्टेप्स इज स्पेसिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम. तो पहले एल्गोरिथम का स्पेसिफिकेशन लिखोगे और ऑब्लिक करके लिखा है कि फिर आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे. तो जो आप ये थर्ड स्टेप पे करोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग करोगे. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज वेरिफिकेशन. जो आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन की उसको वेरीफाई करोगे. इज इट फिजिबल, तो आप उसको रन करके देखोगे, पूरा अंडरस्टैंड करके देखोगे. एनालिसिस, एनालिसिस में क्या आता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है. तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी किया होगा. तो यहाँ पर आप एनालिसिस करते हो उस एल्गोरिथम को बनाने के बाद में कि कहीं टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए. प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स कि आप हार्ड डिस्क में कितना स्पेस ले रही है वो एल्गोरिथम. तो ये एनालिसिस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस एनालिसिस के बेसिस पे ही एक एल्गोरिथम की फिजिबिलिटी मानते हैं. लास्ट वन इज द कोडिंग. तो जो एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन की है, राइट, उससे क्या करोगे? कोडिंग. अब आपको यहाँ पर 3 जो है यहाँ पे इस तरीके से ये रिपीटेडली दिखाई दे रहे होंगे. तो एनालिसिस करने के बाद कितनी बार आपको ऐसा लगेगा कि दिस एल्गोरिथम इज टेकिंग द टू मच टाइम और स्पेस, तो आप फिर से कहाँ मूव करोगे? स्टेप 2 के ऊपर. फिर से आपका डिसीजन क्या करोगे? चेंज करोगे, राइट. तो कितनी बार आपको एनालिसिस करने के बाद ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पर डेटा को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप इस स्टेप 2 के ऊपर मूव करोगे. और एनालिसिस के ऊपर ही आपको पता चलेगा कि एल्गोरिथम की डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिज़ाइन थोड़ा चेंज करके फिर वेरीफाई करके फिर से उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है एनालिसिस करोगे, राइट. तो जो मैंने आपको थियरी यहाँ पर एक्सप्लेन की है, तो 3 मार्क्स के अंदर आपको पूरा ये चार्ट बना के आना है. आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन द 1 लाइन 1 by 1 द थियरी ऑफ दीज स्टेप्स जो मैंने आपको यहाँ पे ओरली एक्सप्लेन की है. ओके, सो यहाँ पर आपने स्टडी किया टॉपिक 2 के अंदर डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम. ओके, आफ्टर दैट let's we start the topic 3.
मैथमेटिक्स फॉर एल्गोरिथमिक सेट्स। तो सेट थ्योरी जो आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, तो वही पूरी सेट थ्योरी आपको यहाँ पर लिखनी है और सिलेबस में भी यही मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी द सिलेबस अगेन कि अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। व्हाट इज एन एल्गोरिथम इज डन, मैथमेटिक्स फॉर एल्गोरिथमिक सेट्स। तो अभी हम ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी टॉपिक 3, सेट थ्योरी। डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या होता है? सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो सेट की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इन ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स ऑफ सेट भी बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो आप जो भी सेट थियरी लिखते हो, आपने मैथ्स के अंदर स्टडी किया होगा, हम 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही सेट थियरी स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट आपने अभी जस्ट 4th सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसके अंदर भी सेट थियरी था एल्जेब्रा के अंदर, राइट। तो इसमें ये जो है कर्ली ब्रेसेस आपके वो एनक्लोज्ड होता है किसके अंदर? सेट आपके ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में। एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कॉमास। तो जब आप सेट को लिखते हो तो आप इसकी जो डेफिनेशन है उसमें बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि पहले सेट की डेफिनेशन, सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और दिस ऑब्जेक्ट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और ये जो एलिमेंट्स है, फिर 3rd नंबर की लाइन उसी से बनी कि हम इसको किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है, राइट। नेक्स्ट, सेट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर्स। तो जो पूरा सेट है, जैसे कैपिटल एस लिखोगे फिर उसके एलिमेंट्स जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपने इसके थियरी का इंट्रोडक्शन सेक्शन देखा। सो यहाँ पर जो है सेट, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, हम उसको 3 तरीके से जो है सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने इसकी पहले वाली स्लाइड जो थी उस पर सेट थ्योरी में उसका इंट्रोडक्शन देखा। अब उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है बेसिकली क्या है? टॉपिक आपका ये है कि मैथमेटिक्स फॉर एल्गोरिथमिक सेट्स। तो इसमें आप मैथमेटिक्स फॉर एल्गोरिथम सेट के अंदर सेट का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। उसके बाद आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड जो है उसके बारे में लिखना है। उसी में आप सेट को लिखा हुआ यहाँ पर देखोगे जो थियरी में समझा है। तो 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड, सेकेंड वन इज डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज एंड थर्ड वन इज द रिकर्सन मेथड। तो ये बेसिकली आपका आउट ऑफ द थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। सो दैट्स वाई इस यूनिट का वेटेज जो है वो 2% है, राइट। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही इसको मेंशन करके आना होगा इन केस इट इज आस्क्ड। बाकी जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन अभी आपने पढ़े उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट। सो let's see representation of the set. Again we move to the topic, listing method. The elements are listed in the set. एलिमेंट्स को अपन लिस्टेड करते हैं। तो अभी आपने थियरी में देखा था डेफिनेशन में कि यहाँ पर सेट का नाम क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल ए है, राइट, कैपिटल लेटर में लिखा है और उसके ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखे हुए हैं? उसके एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स किससे सेपरेट होते हैं? बाय द कॉमास। तो 0, 1, 2, 3, 4। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है ए सेट ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन 5 देन। तो अगर आपको ऐसा लिखने को कोई कहता है कि यू हैव ए सेट एंड एलिमेंट्स इन दैट सेट आर लेस देन 5, तो आप क्या लिखोगे? तो हमने ए उस सेट का नाम दिया है और लेस देन 5 है तो मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ तक के एलिमेंट्स जो है वो ए का क्या बन गया? सेट बन गया। तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हो गए? अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी लिस्टिंग मेथड इज डन। सो लेट्स सी द second type of representation of set, describing properties. Describing the properties of elements of a set define the set. Example, a set of various vowels, here is the vowels like a, e, i, o, u जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं, राइट। तो आप इसमें डिस्क्राइब कर रहे हो कि मुझे किसका सेट बनाना है, पर्टिकुलरली किसका? वोवल्स का। तो इसीलिए ये किस टाइप के सेट आपके सेट्स हुए? डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज वाले। तो फर्स्ट कौन सा था? जो लिस्टिंग मेथड। तो लिस्ट में आपको 0, 1, 2, 3, 4 मिल रहा था, लेस देन 5 अगर शो करना है। नेक्स्ट अभी जो आप देख रहे हो वो कौन सा है? आपका डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक एग्जांपल है ए सेट ऑफ वोवल्स का, हैंस हियर वोवल्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। तो यहाँ पर सेट की प्रॉपर्टी क्या हो गई? वोवल्स। विच डिफाइन द सेट एस। तो यहाँ पर सेट ए जो है उसका नाम है और क्या क्या आपके यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए? एज पर द एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ, यू, और दैट शुड बी separated by the commas and enclosed in the curly braces opening and the closing curly braces, right? So let's see
The next third method to describing the set is recursion method. Recursion means a function calling itself, right? So something is calling itself again and again, that is known as the recursion. So let's see the property description. The recursion occurs to define the elements of the set. For example, यहाँ पर A set है, right? तो x बार x इज स्क्वायर ऑफ n, तो x जो है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ n है, वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 10. तो यहाँ पर आप जो है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकली दिया है, सो दिस डिफाइन द सेट एज. तो ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से बनाया हुआ उसका सेट है. तो आपका क्वेश्चन क्या है कि x जो है वो स्क्वायर ऑफ n है, तो जो भी आप n नंबर लोगे उसका स्क्वायर ऑफ नंबर करोगे वो वैल्यू क्या बनेगी, x, राइट. और n जो आप लोगे वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10, यानी 0 से लेकर के 10 तक होना चाहिए. तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि आपको किस किस के स्क्वायर लिखने हैं. तो जैसे 0 फिर 1 आया, राइट, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, राइट, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 10 तक आपको जाना है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स इक्वल टू दोनों ही मतलब ट्रू होने चाहिए. तो n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 10 तक. तो लास्ट आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100. तो ये सेट किस तरीके से जनरेट हुआ कि 0 का आप स्क्वायर करोगे तो 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे लास्ट आप 10 का स्क्वायर करोगे 100. तो यहाँ से आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन से क्या बनाने को मिला, सेट. तो ये जो आपका थर्ड टॉपिक है वो अभी भी कंटिन्यू है. 3 मेथड्स आपके कंप्लीट हुए. तो अब इसके बाद सेट के जो अलग अलग टॉपिक्स है वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे. बट सेट का एक टॉपिक जो है आपका रिप्रेजेंटेशन वाला वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है. सो लेट्स सी कि हम टॉपिक 3 से अगेन गो थ्रू कर लेते हैं. जो भी जस्ट हमने कंप्लीट किया है, पहले आपको सेट का डेफिनेशन लिखना है, कैसे लिखते हैं, प्लस ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस सेपरेटेड बाय द कॉमास कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो 3 मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तीनों के नाम, यहाँ पर उसकी पहले डेफिनेशन, फिर उसका एक एग्जाम्पल. इसी फॉर्मेट में यहाँ पर थियरी लिखी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, कि टॉपिक के बारे में 2 लाइन, आफ्टर दैट उसका एक एग्जाम्पल. फिर नेक्स्ट में भी ऐसे लिखा है, टॉपिक के बारे में लाइन, 2 लाइन्स की क्या डिस्क्राइब करता है, आफ्टर दैट उसका एग्जाम्पल. और लास्ट जो आपका रिकर्सन मेथड है उसमें भी टॉपिक के बारे में 2 लाइन्स और आफ्टर दैट उसका एक एग्जाम्पल जो सेट का. तो पहले यहाँ पर एग्जाम्पल में भी उसका क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन के बाद उसको आपको उसका सेट का एक पूरा आंसर बना करके देना है. सो स्टूडेंट्स, योर लेक्चर 1 इज़ कम्प्लीटेड. सो लेट्स गो थ्रू अगेन दी लेक्चर. मैं आपको फिर से बता देती हूँ आपने आज क्या क्या स्टार्ट किया, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट लेक्चर, राइट, ऑफ दिस सेमेस्टर. सो आज हमने कंप्लीट किए हैं 3 topics and topic 3 is still running, but the one part of the topic 3 is completed. topic 1 आपका हुआ एल्गोरिथम की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज. सेकंड टॉपिक आपने स्टडी किया डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम, जिसमें आपने 6 स्टेप्स देखी थी डायग्राम की और जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप. थर्ड वन इज मैथमेटिक्स फॉर एल्गोरिथमिक सेट्स. ये टॉपिक आपका रन है, इसमें आपने सेट का इंट्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स बाय 3 मेथड्स आर कंप्लीटेड, राइट. तो टॉपिक 3 आपका स्टिल रनिंग है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ये आपका सिलेबस है, इसका वेटेज जो है वो यूनिट का 2% है. टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 सेट थियोरी, रिप्रेजेंटेशन मेथड्स, and the last one is the third method of the representation. So I hope you understand the lecture. Thank you, students.